खबर ये कि 2019 के चुनाव का शंखनाद अब से कुछ ही मिनटों बाद विज्ञान भवन से हो जाएगा। विज्ञान भवन में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हम आपको सीधे लिए चलते हैं विज्ञान भवन, जहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने वाले हैं। उनके साथ दोनों चुनाव आयुक्त भी मौजूद हैं और चुनाव आयोग ने अपनी जो एक्सरसाइज होती है सिक्योरिटी फोर्सेस के मूवमेंट की और साथ ही साथ चुनावी अधिकारियों को वहां पर चुनाव के अधिकारियों को बूथ तक पहुंचाने की वो सब पूरी कर ली है और अब से थोड़ी ही देर बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, चंद मिनटों बाद। आइए सीधे लिए चलते हैं विज्ञान भवन में आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Colleagues from media. As you are aware, the 5-year term of the 16th Lok Sabha is due to expire on 3rd June 2019. Article 324 of the Constitution restores the relevant powers, duties, and also the functions of the Election Commission. While Section 14 of the Resolution of People Act 51 provides for conduct of elections to constitute a new Lok Sabha before the expiry of its current term. Taking into account these constitutional legal provisions, various judicial pronouncements on issues, the Election Trust of India has taken into account these constitutional legal provisions, various judicial pronouncements on issues. In fact, attempted a very comprehensive preparation for the conduct of election to the 17th Lok Sabha in a manner that is free, fair, inclusive, accessible, ethical, participatory, and also festive. When independent India held its first general and assembly elections during 51-2, not everybody was convinced of our capacity to successfully conduct the exercise. In fact, democracies in the world, then numbering maybe around 40, most of them were very skeptical. But India, by conducting our elections, emerged as a, should I say, beacon light for the emerging democracies all over the world. The scale and complexity of the elections has only grown since then. The population of India increased 3.3 times between 91 and 2001 census. But there are other statistics also which have gone up sharply, as expected. Mahatma Gandhi said, democracy must, in a sense, mean the art and science of mobilizing the entire physical, economic and spiritual resources of all the various sections of people in the service of the common good of all. Keeping all this in view, this commission started preparing for elections for quite some time. We started with organizing a series of meetings with chief electoral officers of all the states and UTs in order to review various aspects of election preparedness. Video conferences with the chief secretaries, DGs, home secretaries, chief electoral officers and police nodal officers from MHA and as well as from the states were held on 21st, 22nd and 28th January to assess the overall law and order situation, state or UT specific areas of concern and deliberate on the quantum of central armed police forces required. Several rounds of discussions were held with the Ministry of Home Affairs at the level of our officers, and we also had an in-depth discussion with the Union Home Secretary and his team. The Commission also held deliberations with several key departments, especially railways, in order to ensure
smooth movement and facilitation during the conduct of elections. To get a first-hand knowledge of the status of poll preparedness in the states, we visited several states and UTs to review the poll preparedness. During these visits, there is a standard SOP which is followed by the Commission, and not just us, but before us also. This has been a tradition that first of all we start with interaction with the political parties. After that, we have the presentations by the CEO of the state, the police nodal officer of that state, and the central nodal officer from whichever CPF is designated for that state or UT. After that, we have a fairly in-depth interaction lasting maybe sometimes 10 to 12 hours, if not more, with the collectors, SPs, IGs, commissioners of police, wherever there is commissioner system, and all their colleagues. This is followed by a meeting with the central government regulatory departments, income tax, state excise, central excise, in order to talk about the expenditure monitoring. Then there is a meeting with the Chief Secretary, Home Secretary, and their colleagues, DGP and their colleagues. After doing all this, we report back to the media in a press conference in the state. And same process was followed this time also. While finalizing poll dates, examination schedules of various state boards, CBSE, other relevant factors like various festivals, including festivals which have religious kind of bindings, for example, when people are fasting, etc. Harvest season in certain parts of the country, as well as the inputs obtained from the weather department, are also adequately factored in. In fact, behind the scenes, I would like to tell you that our colleagues, the senior deputy commissioner and all his colleagues, they have been slogging for maybe months together to work out all these things. They do every time. They have done this time also. The Commission firmly believes that the purity of electoral roll is the foundation of credible elections. We have been constantly monitoring the health of the rolls in the country, and after the introduction of Aeronet, now we have a pan-India monitoring systems here in Delhi. The electoral rolls have been revised with reference to 11/2019 as qualifying date. Process of continuous updation shall continue till the last date of filing nominations. Total electorate in the final published roll would be in the vicinity of 900 million compared to 814.5 in 2014. This marks an increase of 84.3 million voters since 2014. There are 15 million voters in the age group of 18 to 19. 38,325 third gender others. 71,735 overseas electors. Service electors more than 1.6 million. 99.36 electors have EPIC cards. 23 states and UTs have 100% EPIC coverage. The Commission continues to try the maximum coverage of EPIC still. In this direction, some major initiatives were taken. VVIP Voter Verification and Information Program launched to aid voters in checking their names in the rolls. Toll-free 1950 for checking names through SMS. Special camps organized for enrollment of eligible voters who are left out. No suo motu deletion of names
after final publication of electoral roll is permitted. No deletion modification after 10 days of announcement of elections without prior approval of the Commission. Official voter slips, including those in Braille for our voters, for persons with disability voters. This is distributed or shall be distributed at least 5 days before the poll to all enrolled voters. This process is rigorously monitored and schedule of distribution shared with the public representatives. In fact, at every stage, all these things are shared with the public representatives. However, we would like to make it clear that photo voter slip issued at the last minute shall be used for guidance, but not as a proof of identity in the polling stations. We have already given a very detailed ad 2-3 days back that slip will not be the proof of identity, but there are 11 other options which can be used to cast your vote, provided of course the name is on the electoral roll. A voter's guide in vernacular English is being handed over in these elections to every household, giving all relevant information. On the ballot unit below the name of the last candidate, there will be a button for nota option for the voters who do not wish to vote for any of the candidates. And as an additional measure to eliminate confusion in the minds of our voters, where you press the button in front of that, there is a photograph of the candidate also, so that you make a more conscious choice, seeing the photograph of the candidate for whom you want to vote. Voter assistant booths will be set up at every polling station to extend facilitation to the voters. There are approximately 10 lakh polling stations this year as compared to 9 lakh in 2014, an increase of 10.1%. Why I have used the word approximately is that in some special circumstances, for example, exigencies of weather, snowfall, etc., with the permission of the Commission, a new or auxiliary polling station can be opened even at the last minute. Of course, before the elections. Assured minimum polling facilities at all polling stations like drinking water, electricity, shade, toilets, ramps, and a standard voting compartment are being provided. And these are monitored very closely by the Commission in the meeting with the collectors, video conferences, and the meeting with the Chief Secretary. Efforts are also being made to make voting comfortable, accessible, and sensitive, particularly to the needs of senior citizens, persons with disability, and ladies. VVPATs will be used with EVM at all polling stations in this election. Adequate number of both have been made available for smooth conduct of elections. The ballot units already reached the destination as per requirement, 23.3 lakhs. The control unit, 16.35 lakhs, and VVPATs, 17.4 lakhs. This also includes, by the way, reserve units, because as per the SOP, for example, if the control unit starts malfunctioning, then entire thing is changed. But if the VVPAT stops malfunctions, VVPAT is changed, something like that. And these are details. So accordingly, the requirement as well as the reserves have been worked out. The Commission has specified elaborate standard operating procedures for EVMs and VVPATs, including FLC. Accordingly, the requirement as well as the reserves have been worked out. The Commission has specified elaborate standard operating procedures for EVMs and VVPATs, including FLC, mock poll, two-stage randomization, mandatory VVPAT slip count in one randomly selected polling station per assembly segment. There are very stringent security and administrative protocols related to the machines, including their storage movement, usage as well as handling reserve and VVPATs. In fact, after these 4 or 5 anecdotal incidents of the last 5 poll gone states, new fresh SOPs have been issued for making the last mile transportation even of the reserve EVMs very, very stringent and rigid, including the
putting off monitoring by GPS, etc. The Commission has laid a lot of emphasis on widespread demonstration and awareness activities at the Assembly as well as booth level in order to familiarize as many voters as possible with EVM and VVPATs. Consequent on the schedule of announcement of general elections through the press note, the MCC for the guidance of political parties and candidates comes into effect from today itself in the entire country. The Commission calls upon political parties and candidates to strictly adhere to the same. Elaborate arrangements have been made to ensure effective implementation of the MCC, and any violation, repeat, any violation will be dealt with in the strictest manner. All the candidates are required to file an affidavit in Form 26 along with their nomination papers, which includes information on their criminal antecedents, if any, assets, liabilities, and educational qualifications. As all of you are aware, recently all the proposals of the Commission regarding the expansion of and revealing more information, including of HUF, was accepted by Ministry of Law, and accordingly the Form 26 has been already revised and circulated all over. This format was amended on 26 February 2019. Non-filling of this affidavit in the prescribed format, which also now includes giving you a PAN number, if you have, will result in rejection of nomination paper. Candidates with criminal antecedents would be required to furnish information in this regard in the local newspapers and TV channels on 3 occasions during campaign period. Elaborate arrangements have been made to ensure peaceful conduct of elections. In order to curb noise pollution and prevent disturbance to the people at large, usage of loudspeakers is prohibited at night between 10 p.m. to 6 a.m. No loudspeakers permitted at all during the period of 48 hours ending with the hour fixed for conclusion of poll in the polling area. Commission has also directed political parties, candidates, agents to desist from using environmentally hazardous publicity materials and promote usage of eco-friendly substances for preparation of election campaign material. This is a new effort by the Commission, but this is kind of appeal to everybody to use this. CAPF, Central Police Forces, are going to be deployed in large numbers, the numbers can't be discussed, to ensure free and fair elections well in advance for area domination, especially in areas which are very, very sensitive, route marches and patrolling to enhance confidence and reassure the voters. Targeted deployment of Central Forces in all expenditure sensitive constituencies all over the country. They will also undertake special confidence building measures through route patrolling and route marches in order to bolster especially the confidence of weaker sections of the society, weaker and more vulnerable sections of the society. Preventive measures are being taken by the district magistrates and police authorities to maintain law and order. Commission lays equal emphasis on sufficient deployment of video cameras, CCTVs and webcasting, especially at the critical and vulnerable polling booths. All critical events shall be videographed. Commission appoints sufficient number of general observers, police observers, expenditure observers, awareness observers and micro observers to closely monitor various stages of the election process. Control rooms and complaint monitoring systems are set up with 24 hours toll-free numbers. In fact, on the issue of central observers, this time Commission has taken a conscious decision that wherever required in those states or UTs which are expenditure sensitive and wherever there are major security issues, we would be sending special observers of sufficient seniority and experience and standing and stature to these places. I will not be able to name the states because that is not
that's not something which kind of in advanced level state like this, but we have all the information and we'll act accordingly. We also now have, by now, thanks to our IT and ICT wings, stringent monitoring of all critical events of the poll day using the state-of-art IT applications. This includes the one of the most major, this is C-Vigil, which is an Android app which helps citizens to record any violation of Model Code of Conduct on the mobile and promptly send to election authorities for option. By the way, this was started on a trial basis during Karnataka elections in Bangalore under the direct supervision of the Commission and extended subsequently to all these 5 poll-gone states. In these 5 poll-gone states, almost 28,000 such complaints were received. A citizen can give his or her name and number, and the authority on the other end is duty bound, no options, to report back within 100 minutes the action being taken, proposed to be taken, etc. If a particular complainant feels vulnerable or is making a complaint about, say, large cash transaction happening somewhere and doesn't want his or her name to be revealed, in that case, the Commission will get it published in the local newspapers so that he or she becomes aware of the action taken and her privacy also protected. This is a major tool of citizen empowerment, and it is really the experience of these 5 poll-gone states. We are really hopeful that now when it is used pan-India, it will kind of add another dimension to the empowerment of our citizens. We also have started a PWD app for persons with disability for registration, modification, as well as to ask for doorstep facilities and wheelchair on the day of poll. We already have introduced and we kind of monitored very closely that all the permissions can be obtained on Suvidha candidate app and they can also track their status. Samadhan is an integrated web portal for registering and resolving citizen information, suggestions, feedbacks and complaints. This is another way of getting the feedback. As you are aware, the Commission for many years under one of its former CECs had started systematic voters education and electoral participation, that called SWEEP. This program is basically for dissemination, advocacy and communication. And for this, comprehensive measures are undertaken for enhancing our contact with the voters and increasing their participation in this largest festival of democracy, Desh Ka Mahatyohar. This is being personally monitored by steered and monitored at the level of bureaucracy in the Commission by Senior DC, Administration and Planning and his other colleagues, and Commission itself takes very regular account of this. Comprehensive measures are also being taken to reach out to the voters in the remotest corners through folk art, festivals, local festivals, Nukkad Nataks, and this time also we've started extensive use of community radio, and we are also embarking on the area of how to kind of, besides the print and electronic media, how to kind of enlarge our outreach through social media. The Commission has always considered engagement, considered media as an important ally and a rather potent force multiplier in ensuring an effective and efficient election management. Hence, the Commission has directed all CEOs of the poll-going states to have positive and progressive engagement and interaction with the media. Commission also requests the media to play a positive, proactive and constructive role in supplementing and facilitating our efforts towards delivery of
free and fair elections. The media certification and monitoring committees have already been constituted at all the states and districts to deal with the problem of paid news and other media-related violations and pre-certification of political advertisements on electronic media. An additional member, a social domain media expert, is included now in the membership of the MCMC, this Media Certification and Monitoring Committee at the state and district level, so as to get inputs from his or her side. Candidates are required to furnish details of their social media account. All political advertisement on social media will also require pre-certification. All expenditure on campaigning advertisement on social media is to be included in the election expenditure account. All provisions of Model Code of Conduct shall also apply to the content being posted on social media by candidates and political parties. And based on the recommendations made by the committee appointed by the Commission regarding the further enlargement of Section 126 of RPA in sync with the new media and deliberations made with the various other stakeholders, social media platforms, the major steps are as follows. The intermediaries, viz. Facebook, Twitter, Google and YouTube, have committed in writing to ensure that any political advertisement published on their platforms will be certified from MCMC. Some IT applications are also being thought of to streamline it further and make the process less cumbersome. In fact, Commission has taken a stock of the IT applications being developed by our team, and maybe we'll introduce as a pilot project in some states to start with. Google and FB have also announced verification of political advertisers and ad archives with reference to advertisement buying. Social media platforms have committed to implement pre-certification, as I said earlier. To keep a check on election violations and menace of fake news and hate speech during the election period, social media platforms have told us that they have appointed dedicated grievance officers to take necessary and prompt action against the contents published on their platforms. Social media platforms have committed to take action on any content reported by designated officers of ECI also, which violates various electoral laws. Internet and Mobile Association of India, in consultation with IAS, with ECI, is formulating a set of code of ethics for intermediary online platforms. This is a work in progress. Now I will start reading what you all have been waiting for. हिंदी भी आती है और हिंदी का वर्जन आपको मिलेगा जब आपको प्रेस नोट मिलेगा. इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का भी मिलेगा. इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का भी मिलेगा जी. हिंदी हिंदुस्तानी सब आते हैं, ऐसी बात नहीं. एनीवे, I read out the proposed phase 1. Before that, I would like to inform all of you that this time, instead of 9 phases, we have 7 phases of election. Phase 1, date of issue of gazette notification. Notification होने के gazette notification होने का दिन 18 7 phases of election. Phase 1, date of issue of gazette notification. Notification होने के gazette notification होने का दिन 18/3/2019 Monday. Phase 1, last date of nomination, आखिरी तारीख नॉमिनेशन की 25/3/2019 Monday. Last date of nominations 25th March 2019 Monday.
Date for scrutiny of nominations, 26 March 2019, Tuesday. Last date for withdrawal of candidature, 28th March, Thursday. Date of poll, first phase, 11th April, Thursday. Date of counting, 23rd March, Thursday. 23rd May 2019. Sorry. Or date before election shall be completed, 27th May 2019. Phase 2. Date of issue of Gazette notification, 19th March. Last day of nomination, 26th March. Date for scrutiny of nomination, 27th March. Last date of withdrawal, 29th March. Date of poll, 18th April. Date of counting, same, 23rd May. Phase 3. Date of issue of notification, 28th March. Last day of nomination, 4th April. Date of scrutiny, 5th April. Last date of withdrawal of candidature, 8th April. Date of counting, of course, 23rd. Date of poll, 18th April. No, we are sending you all this by, after I have read it through, you are getting it out by soft copying, almost right away. I'll read out the phase 2 again. Okay. No, I'll read out the phase 2 again because she's asked for it. Sir, hello. Phase 3, okay. Thank you. Phase 3. Phase 3, date of issue of Gazette notification, 28th March. Last date, we'll come to that after this. That is the second statement. Last date of nomination, 4th April. Phase 3. Date of scrutiny, 5th April. Last date for withdrawal of candidature, 8th April. Date of counting, 23rd May. Date of counting. Date of poll, 23rd April. Phase 4. 23rd April. 23rd April. Is it clear now? Phase 4. Date of issue of notification, 2nd April. In fact, the most important are 2 dates that I can give you instead of giving you 7 dates. The date of poll, 29th April. And the date of counting, same. Phase 5. Date of issue of Gazette notification, 10th April. Date of poll, 6th May. Phase 6. Date of issue of Gazette notification, 16th April. Date of poll, 12th May. Phase 7. Date of issue of Gazette notification, 22nd April. Date of poll, 19th May. And all, sorry, I will repeat the date of poll. First phase, 11th April. Second phase, 18th April. Third phase, 23rd April. Fourth phase, 29th April. Fifth phase, 6th May. Sixth phase, 12th May. Phase 7, 19th May. Am I clear now? And all countings, without, no need to say, but I am repeating, 23rd May. Now the Lok Sabha state-wise details if you want, or otherwise I will just tell you that in phase 1 there are total 543 constituencies, as you are all aware. Phase 1 is 91. In 20 states, phase 1 is 91 in 20 states. Phase 2 is 97 in 13 states. Phase 3 is
Phase 1 is 91 constituencies in 20 states. Is it clear? Phase 2 is 97 constituencies in 13 states. Is it clear? Phase 3 is 115 constituencies in 14 states. When I say states here, it also means states and UTs. Phase 4 is 71 constituencies in 9 states. Now, 71 constituencies in 9 states. Phase 5 is 51 constituencies in 7 states. Phase 6 is 59 constituencies in 7 states. Phase 7 is 59 constituencies in 8 states. You want me to read it out once more? Phase 1, 91 constituencies, 20 states. Phase 2, 97 constituencies, 13 states. Phase 3, 115 constituencies, 14 states. Phase 4, 71 constituencies, 9 states. Phase 5, 51 constituencies, 7 states. Phase 6, 59 constituencies, 7 states. And Phase 7, 59 constituencies, 8 states. The notification, the formal notification of by-elections, all the seats, etc., is being made separately today itself. Jammu Kashmir. States going in single phase. Andhra, Arunachal. Before now reading further, it must be clear that they will be overlapping. Same state would be named maybe in 2 phases or 3 phases. But still I am reading, I start reading now. States going in single phase, Andhra, Arunachal, Goa, Gujarat, Andhra, Arunachal, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Kerala, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Punjab, Sikkim, Telangana, Tamil Nadu, Telangana, I said Telangana, Tamil Nadu, Uttarakhand, Andaman Nicobar, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, all right. You have waited for so long, I'll repeat. Tamil Nadu, Telangana, Uttarakhand, or you want me to repeat from the beginning? Andaman Nicobar, Dadra Nagar Haveli, Daman and Diu, Lakshadweep, Delhi, Pondicherry, Chandigarh. In all 22 states going in single phase. States undergoing 2 phases. Karnataka, Manipur, Rajasthan, Tripura. States undergoing 3 phases. Assam, Chhattisgarh. States undergoing 4 phases. Jharkhand. 3rd phase, Assam, Chhattisgarh. 3 phases. 4 phases, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha. Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha. 5 phases, Jammu Kashmir.
Sixth phase, no state. Seventh phase, Bihar, Uttar Pradesh, West Bengal. Uttar Pradesh, West Bengal. And now I'll read out once more. First phase, 22 states and UTs. Second phase, 4 states and UTs. 2 phases, 4 states. 3 phases, 2 states. 4 phases, 4 states. 5 phases, 1 state. 7th phase, 3 states. You see, the issue also is that there has to be ensured the movement of the CPFs from one place to the other, and they go by trains, etc., and then they require some time for initial settling down, which is how all this has been done. Now Jammu Kashmir. No, before that, sir, each state and which are the states and the date of polling. So we have it. No, please. read that. Sorry? Please read the dates. Sir, it's being sent to you now. No, what are the Copy. Just now. sir, 7 phases states? That's the most important basic information. Nobody knows. Like Andhra is going to be on which date? Phase 1, Andhra, all the 25 seats. Phase 1, 11th April. It has been said 4 or 5 times, I'll say it again. 11th April, 25. Now I read state-wise, please. Andhra, first, now I'm reading phase 1, right? 11th April. Andhra, 25. Arunachal, 2. Assam, 5. Bihar, 4. Andhra, 25. Arunachal, 2. Assam, 5. Bihar, 4. Chhattisgarh, 1. Jammu Kashmir, 2. Maharashtra, 7. Manipur, 1. Meghalaya, 2. Mizoram, 1. Nagaland, 1. Odisha, 4. Sikkim, 1. Telangana, 17. Tripura, 1. Uttar Pradesh, 8. Uttarakhand, 5. West Bengal, 2. Andaman Nicobar, 1. Lakshadweep, 1. Total, 91. Am I clear now? Phase 2, Assam, 5. As said earlier, phase 2 starts from 18th April. Assam, 5. Bihar, 5. Chhattisgarh, 3. Jammu Kashmir, 2. Karnataka, 14, 1-4. Maharashtra, 10. Manipur, 1. Odisha, 5. Tamil Nadu, 39. Tripura, 1. Uttar Pradesh, 8. West Bengal, 3. Uttar Pradesh, 8. West Bengal, 3. Puducherry, 1. Total, 97. Phase 3, starting from 23rd April,
Assam 4, Bihar 5, Chhattisgarh 7, Gujarat 26, Goa 2, Jammu Kashmir 1, Karnataka 14, Kerala 20, Maharashtra 14, Odisha 6, UP Uttar Pradesh 10, West Bengal 5, Dadra and Nagar Haveli 1, Daman and Diu 1, total 115 spanning 14 states and UTs. Phase 4 starting 29th April. Bihar 5, Jammu Kashmir 1, Jharkhand 3, Madhya Pradesh 6, Maharashtra 17, Odisha 6, Rajasthan 13, Uttar Pradesh 13, West Bengal 8. 5 was phase 3. 71 across 9 states. Phase 6. Phase 5, Bihar, 6th May, Bihar 5, Jammu Kashmir 2, Jharkhand 4, Madhya Pradesh 7, Rajasthan 12, Uttar Pradesh 14, West Bengal 7, total 51. Phase 6 starting 12th May. Bihar 8, Haryana 10, Jharkhand 4, Madhya Pradesh 8, Uttar Pradesh 14, West Bengal 8, National Capital Territory of Delhi 7, Phase 7 starting 19th May. Total Phase 6 59. Phase 7 starting 19th May. Chhattisgarh 8. Bihar 8. Not Chhattisgarh, Bihar, I stand corrected. Jharkhand 3. Madhya Pradesh 8. Rajasthan 13. Punjab 13, not Rajasthan. Rajasthan is over already. Punjab 13. West Bengal 9. Chandigarh 1. And UP 13. Himachal 4. Total 59. This is the states.
वारम इनके स्टेप पढ़ूंगा तो बोल दूंगा. Sir, what about the Sorry? Sir? Assembly separately notification being issued. Sir, what about the Tamil Nadu states, 21 assembly seats are lying vacant. Do you have any decision has been taken? Decision has been taken and is being announced to the media. We'll take the questions. Let's finish first. When we issue you the soft copy, in that each constituency will also be mentioned. Okay. Jammu Kashmir. After holding elections in Jammu Kashmir, the Commission has been continuously assessing the prevailing situation in the state, requirement of central forces and other logistics for elections, requirement of the security for the candidates, and preparedness of the state for the election on key factors, including the recent developments. The Commission had conducted several rounds of review meetings with state administration of Jammu Kashmir, with MHA, including Home Secretary and his team. State Government of Jammu Kashmir and the Union Home Ministry had sent detailed and specific inputs to the Commission regarding holding elections in the state. In fact, we had sought the comments from the MHA quite early to assess the situation and level of preparedness. Commission had recently visited J&K and had detailed meetings with all the political parties, important central and state agencies, district authorities, Chief Secretary, DGP and others. Based on all these inputs and recommendations from the states, state government, Home Ministry, political parties, other stakeholders, constraint of availability of central forces and other logistics, requirement of security forces for security of candidates in wake of the recent incidents of violence in the past, recent past, and keeping all other challenges in mind and keeping a totality of views, the Commission has decided at this stage to announce only schedule of the Parliament election in Jammu Kashmir. The Commission will be regularly and on real-time basis monitoring the situation in Jammu Kashmir and continue to take inputs from all necessary quarters, and decision-taking holding legislative assemblies in Jammu Kashmir will be taken soon. The Commission has also decided for more effective monitoring to appoint 3 special observers for Jammu Kashmir. Shri Noor Mohammed, IAS of 77 batch retired, IAS 77 batch retired. Shri A.S. Gill, IPS 72 batch, who retired as DG CRPF and also served as IG in Jammu Kashmir, in CRPF, in charge of Jammu Kashmir from 95 to 97. Shri Vinod Jutshi, 82 batch, who has served in the Election Commission for almost 6 to 7 years, and I think most of you know him as it is. Shri Noor Mohammed ji has occupied various positions like Secretary National Disaster Management Authority, Member Secretary NCR Planning Board, Chief Electoral Advisor UNDP Kabul, International Election Commissioner Afghanistan in the 2005 Parliament elections, Deputy Election Commissioner of India and Chief Electoral Officer Uttar Pradesh, amongst other assignments. And Shri Gill, as I said, retired as DG CRPF. He remained DGP in Rajasthan, and he also was in Jammu Kashmir as IG CRPF from 95 to 97.
Shri Jutsi he retired as Secretary Tourism, Government of India, and he remained in the Election Commission for a little over 7 years. These observers have been contacted by the Commission. They have kindly consented, and a meeting is scheduled by the Commission at 4 o'clock in the afternoon to go over the various modalities with the 3 honorable central observers. Sir, just one conclusion, sir. Can I just finish? Yes. I'll just take. As far as the Commission has also taken into account the fact that the tenure of legislative assemblies of states of Andhra Pradesh, Arunachal, Odisha and Sikkim will expire on 18th June, 1st June, 11th June and 27th May. I repeat, Andhra 18th June, Arunachal 1st June, Odisha 11th June, Sikkim 27th May. After taking into account all these relevant factors, the Commission has decided to hold elections for these legislative assemblies for these 4 states simultaneously with the general elections to the 17th Lok Sabha. Elections to the different assembly constituencies in these states will follow the same schedule as for the corresponding parliamentary constituencies, that answers your question, of which these are relevant assembly segments. There are 34 casual vacancies तो मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने घोषणा कर दी है 7 फेजेस में ये चुनाव होंगे और जो वोटिंग की गिनती है वो 23 मई को होगी। यानी 23 मई को पता चल जाएगा कि किस्सा कुर्सी का प्रधानमंत्री कौन की इस दौड़ में कौन सत्ता पाता है। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में सीधा मुकाबला है। हालांकि राहुल गांधी ने महागठबंधन बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अभी तक उस महागठबंधन ने कोई रूप नहीं लिया है। उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की बात थी कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन तीनों के बीच सहमति नहीं बन पाई और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपना एक अलग गठबंधन बना लिया। निकट, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, तैयार है भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए? एकदम तैयार हैं हम लोग चुनाव के लिए, क्योंकि हम लोगों को देखा जाए तो एक छोटी सी बात है कि अब तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है हम लोग जीतने वाले हैं। पिछले बार हम लोगों ने, बीजेपी ने 282 सीट से जीत ली थी। एनडीए की सरकार देखे तो 336 सीटों पे हम जीते थे। इस बार बीजेपी की अकेली सीट्स 310 से ज्यादा होंगी और अगर हम एनडीए की बात करें तो आप देखिएगा 400 पार होने वाली हैं। इतने काम हम लोगों ने करे हैं। हमारे इंटरिम बजट में थोड़ा ज्यादा और कॉन्फिडेंस नहीं है 400 का? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जनता हमारे साथ है। वही मैं आपको छोटी सी चीजें कुछ गिनवाना चाहूंगी। जैसे इंटरिम बजट के लिए सब बोलते हैं अरे इंटरिम बजट है, 6,000 रुपए क्या होते हैं। प्रमाण आ गया, 2,000 रुपए जा चुके हैं अकाउंटों में और भी होंगे। अगर आप याद करें कि 21,900 करोड़ रुपए का भुगतान यूपी में किया गया था भाजपा सरकार के तहत। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं। लिस्ट इतनी लंबी है कि सिर्फ मैं ही बोलती रहूंगी, बाकी लोगों को समय नहीं मिल पाएगा। 10% का आरक्षण मिला है इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को। देखिए कितनी बड़ी जीत है इसमें, जिसमें कि SC, ST और OBC का आरक्षण काटा नहीं गया है। उसके बाद मुद्रा योजना की अगर हम बात करें, मुद्रा योजना में कितने लोगों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन दिया गया है, जिसमें अधिकतर औरतें हैं जो अपना बिजनेस छोटे से रूप में शुरू करने जा रही हैं। ट्रिपल तलाक, अगर मुसलमानों की बात करें, जो कांग्रेस पार्टी दुहाई देती थी माइनॉरिटी की होने की और मुसलमानों का होने की, ट्रिपल तलाक हम लोगों ने लाया, लोकसभा बिल में हम लोग पेश करें। उसके जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है और उनके सांसद तो ये भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो हम तो इसका ट्रिपल तलाक का बिल ही खारिज कर देंगे। तो आप कैसे बढ़ा रहे हैं मुसलमानों को? बहुत सारी चीजें। सीपीआई इन्फ्लेशन आज की डेट में सिर्फ 4% है, यूपीए की सरकार में 10% था। तो सीपीआई इन्फ्लेशन कम हो रहा है, मतलब रोजाना
तो हम तो इसका ट्रिपल तलाक का बिल ही खारिज कर देंगे। तो आप कैसे बढ़ा रहे हैं मुसलमानों को? बहुत सारी चीजें, सीपीआई इन्फ्लेशन आज की डेट में सिर्फ 4% है, यूपीए की सरकार में 10% था, तो सीपीआई इन्फ्लेशन कम हो रहा है, मतलब रोजाना की जो चीजें हैं वो सस्ती हो रही हैं, आम जनता को फायदा हो रहा है। अगर अब नॉर्थ ईस्ट की थोड़ी सी बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में पहली बार नॉर्थ ईस्ट की इतनी स्टेट्स हमारे रेलवे मैप पर आई हैं। आप दिल्ली से लेकर, अभी हाल ही में अनाउंसमेंट हुई है, दिल्ली से लेकर बंबई तक एक एक्सप्रेसवे बन रहा है जिसमें सिर्फ 13 घंटे के सफर में दूरी तय कर ली जाएगी। आप बात कर रहे हैं अहमदाबाद, एक और बात, अहमदाबाद से बंबई तक एक बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है। तो देखिए चीजें तो हो रही हैं नॉर्थ ईस्ट की। मैंने 33, एक बहुत बहुत बड़ी चीज है ये कि 33% अगर डैमेज होता है क्रॉप्स को, किसानों की बात, अगर डैमेज होता है क्रॉप्स को तो उनको हम लोग 50% फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं। तो देखिए चीजें हो रही है, आम जनता के लिए चीजें हो रही है। ये पहली सरकार है जिसने इतने क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं, आम जनता के लिए खड़े हैं, आम जनता के साथ खड़े हैं। तो ये तो एकदम स्पष्ट है कि इस बार फिर से हिंदुस्तान जीतेगा, भाजपा जीतेगी तो हिंदुस्तान जरूर जीत रहा है। चलिए, भाजपा जीतेगी, हिंदुस्तान जीतेगा, राष्ट्रवाद का आपका नरेशन है ही, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तारीखों की मैं आपको जानकारी दे देता हूं। 7 फेज में चुनाव होना है। 11 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा 20 राज्यों की 91 सीटों पर। 18 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा 13 राज्यों की 97 सीटों पर। 23 अप्रैल को तीसरे चरण का मतदान होगा 14 राज्यों की 115 सीटों पर। 29 अप्रैल को चौथा चरण होगा 9 राज्यों की 71 सीटों पर। यहां पर राज्यों का मतलब है उसमें यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेश शामिल हैं। 6 मई को 5वां चरण होगा 7 राज्यों की 51 सीटों पर। 12 मई को 6ठा चरण होगा 7 राज्यों की 59 सीटों पर। 19 मई को 7वां चरण होगा 8 राज्यों की 59 सीटों पर। और 23 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल में 7 चरण में चुनाव होगा। सतीश जी, इस तारीख को देखने के बाद आप क्या कहेंगे? अब देश तैयार है? आपको क्या लगता है ये सीधी जंग होगी या त्रिकोणीय चतुष्कोणीय मुकाबला इसमें आप देखते हैं? क्या आपको लगता है ये मोदी वर्सेस राहुल होगा या मोदी वर्सेस रेस्ट तो नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई महागठबंधन या किसी बड़े गठबंधन ने शक्ल ली ही नहीं है? जी दीपक भाई, हमको लगता है कि पिछले बार 9 फेजेस में इलेक्शन हुए थे, तो इस बार इलेक्शन कमीशन ने 2 फेजेस कम कर दिए हैं। तो निश्चित रूप से ये सराहनीय है क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में जितना कम समय चुनाव में लगे उतना बेहतर है। अब जहां तक ये लड़ाई की बात है, संघर्ष की बात है, तो निश्चित रूप से द्विपक्षीय संघर्ष की अधिकतर राज्यों में द्विपक्षीय संघर्ष ही देखा जाएगा। तीसरा पक्ष कुछ जगहों पर रीजनल स्तर पर दिखाई देगा, लेकिन एक महागठबंधन के रूप में वो उभर कर सामने नहीं आया, तो ये भारतीय जनता पार्टी के हित में जाएगा। और निश्चित रूप से 3 राज्यों में जो दिसंबर में चुनाव आए थे उसके बाद जो 3 महीने गुजरे हैं, और उन 3 महीनों की हम बात करें तो निश्चित रूप से बीजेपी की स्थिति बेहतर हुई है और बीजेपी के पक्ष में बॉल है। तो ये चुनाव भी पिछली बार सुनामी था, इस बार साइलेंट रेवोल्यूशन है बीजेपी के पक्ष में जो लोगों को हम इस पर बात करेंगे, आगे भी विश्लेषण होगा, लेकिन सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी आशीष के पास। आशीष इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। आशीष, राज्यों के बारे में तो मालूम पड़ गया, लेकिन किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कब पोलिंग होगा ये पता लगना अभी बाकी है। आशीष, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? सतीश जी। दीपक भाई, वही हम बता रहे थे कि पिछली बार मोदी लहर थी, इसमें कोई दो मत नहीं है। उसके बाद 2014 से लेकर अगर हम 2019 तक देखें तो तकरीबन 27 जगहों पर बाईपोल्स हुए हैं। बाईपोल्स में निश्चित रूप से बीजेपी का आंकड़ा बहुत अच्छा नहीं रहा है, 5 सीटें बीजेपी ने जीती है और बाकी अन्य दलों को गया है। लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियां बनी हैं इसे पिछले 3 महीनों में, तो वो 5 सालों के कार्यकाल को अगर लेखा जोखा जनता करेगी तो निश्चित रूप से मोदी के पक्ष में लहर बनती हुई दिखाई दे रही है। हम अभी 10-15 दिनों यूपी में थे, वहां पर कुंभ के दौरान, कुंभ में 25 करोड़ लोग वहां पर आए। 25 करोड़ लोगों ने जिस तरीके से कुंभ का आयोजन भव्य तरीके से देखा, उसके कई आयाम हैं। जो लोग वहां से लौट कर आए उन्होंने कहा कि सरकार ने हद कर दी, ऐसा कुंभ, भव्य कुंभ तो कभी हुआ ही नहीं, इतनी स्वच्छता और इतनी दिव्यता। तो इन लोगों के जेहन में जो सॉफ्ट पावर हम कहते हैं, सॉफ्ट पावर निश्चित रूप से प्रभावित किया है। पुलवामा हार्ड पावर के रूप में प्रभावित किया है।
कुंभ सॉफ्ट पावर के रूप में प्रभावित किया है। तो बीजेपी के पक्ष में, चाहे वो आर्थिक रूप में कहे या राजनीतिक रूप में कहे, निश्चित रूप से पलड़ा भारी दिखाई देता है। और राहुल गांधी का पक्ष जो है, कांग्रेस पार्टी का पक्ष काफी कमजोर है। जो शक्ति अपने बहन के लाने के बावजूद भी मोमेंटम बनाने की कोशिश की, वो मोमेंटम बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और सरकार और देश हित में भी हमको लगता है कि जिन नीतियों को वर्तमान प्रधानमंत्री ने लागू किया है, उसे आगे बढ़ाने के लिए देश के हित में ये समयोचित होगा कि बीजेपी सत्ता में आए और मोदी प्रधानमंत्री बने। निकट, आपको क्या लगता है, क्या नारा देने वाली है? मोदी है तो मुमकिन है, क्या यही नारा होगा? क्या यही आपकी थीम होगी? नारा और थीम तो क्या, ये तो सच्चाई है। मोदी है तो मुमकिन है। आप देखिए कंपटीशन कौन है? कंपटीशन है राहुल गांधी। जो बंदा 1, 2 के बाद 3 नहीं गिन सकता, वो प्रधानमंत्री बनने योग्य है। गिनती तो उनको आती है, गिनती तो उनको आती है। 1, 2, 3 पूरा आता है उनको, ABCD पूरी आती है उनको। ये मत सीख लिया ना, थोड़े समय में सीख लिया, बस वही 1 से लेकर 100 तक गिनती गिन पाए हैं, एक A से लेकर Z तक कुछ लफ्जों गिन पाए, बस और कुछ नहीं है। लेकिन जो सरकार जिंदगी भर इतनी सालों तक आम जनता को लूटती रही, अपने देश को बांटती रही, तोड़ती रही, जातिवाद करती रही, वो पार्टी कैसे सत्ता में आ जाएगी? वो पार्टी कैसे देश का भला कर सकती है? भला करने वाला सिर्फ एक ही इंसान है और एक ही सरकार है, वो है सरकार बीजेपी की। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अटल रहे हैं, एकदम लड़ते रहे हैं अपनी जनता के लिए और आगे भी लड़ते रहेंगे। और आज ये प्रमाण है हमारी जनता को कि हमने मोदी सरकार के तहत जितने काम करे हैं, नेतृत्व में जितने काम करे हैं, उसके तहत इंशाल्लाह आगे भी मोदी सरकार ही आएगी, क्योंकि ये जनता जीतेगी, ये मोदी सरकार नहीं जीतेगी। अभी हम इस पर विश्लेषण करेंगे, बात भी करेंगे, लेकिन बेसिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी आशीष के पास। पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे आशीष। सब लोग ये जानना चाहते हैं कि किन कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव कब होने वाले हैं। क्या आप हमको पूरा शेड्यूल बता सकते हैं? क्या आपके पास में प्रेस रिलीज है जो इलेक्शन कमीशन ने बांटी है? किस राज्य में, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कब चुनाव होंगे? देखिए दीपक जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अभी भी चल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद ये एक प्रेस रिलीज दी जाएगी जिसमें ये क्लैरिटी आएगी कि कौन से राज्य में कब होंगे। लेकिन जो ब्रीफिंग अंदर की गई थी उसमें पहला जो चरण होगा उसमें कुल 22 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी होगी, जिसमें सबसे पहले चुनाव होंगे, जिसमें आंध्रा है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, चंडीगढ़, केरल, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड। और दूसरी अगर हम चरण की बात करें तो उसमें कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और त्रिपुरा है। ये चरण वाइज ये पूरे उन्होंने कहा। लेकिन सबसे अहम बात आज जो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रही दीपक जी, वो ये रही कि पिछली बार 9 चरणों में चुनाव हुए थे, इस बार 7 चरणों में चुनाव होंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल यही था कि क्या जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होंगे या नहीं है। लेकिन इस पर चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया कि दोनों चुनाव यानी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में एक साथ नहीं होंगे, क्योंकि हालात जो इस समय वहां पर बदले हैं, इसका भी जिक्र किया चुनाव आयोग ने और कहा कि अभी फिलहाल दोनों चुनाव एक साथ कराना संभव नहीं है। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि हाल में ही यानी 4 मार्च और 5 मार्च को चुनाव आयोग वहां की पार्टियों, MHA के अधिकारियों और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात की और उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि चुनाव संभव नहीं हो पाएगा। कुल 7 चरणों में मतदान होगा दीपक जी। पहला 11 अप्रैल से जो शुरू होगा, उसके बाद दूसरा 18, 23 अप्रैल, 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई और 19 मई और 23 मई को काउंटिंग की जाएगी। ITV ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था कि 8 अप्रैल के बाद ही पहला जो चुनाव होगा उसका चरण होगा। ठीक हुआ वैसा ही 11 अप्रैल को पहला जो वोटिंग होगी वो डाली जाएगी। दूसरी खबर हमने चलाई थी जिसमें हमने अपने सूत्रों के हिसाब से ये वो बताया था कि आखिर कौन से ऐसे 4 राज्य हैं जिनके विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होंगे। हमने अपने दर्शकों को सबसे पहले बताया था आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चुनाव आयोग ने भी यही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जो 4 राज्य हैं जिनके विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होंगे। और सबसे अहम बात दीपक जिसमें यह भी है कि जो सोशल मीडिया इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, आखिर उसको नियंत्रण कैसे किया जाए, इस बाबत चुनाव आयोग ने भी तैयारी कर रखी है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी नेता सोशल मीडिया के जरिए प्रचार प्रसार करने की कोशिश करता है या फिर हेट स्पीच जो है उसको आगे बढ़ाया जाता है, तो उसके लिए भी चुनाव आयोग ने फेसबुक, गूगल इन सबसे बात करके रखा हुआ है कि ऐसे जो हेट स्पीच वाले कंटेंट थे उनको कैसे हटाया जाए। आशीष, सबसे बड़ी बात
इलेक्शन कमीशन के सामने यह बड़ी चुनौती आई थी कि कई सारे राजनीतिक दलों ने एक साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सवाल उठाए थे और कई सारे दल तो ये भी चाहते थे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल ना हो बल्कि बैलेट पेपर के साथ चुनाव कराया जाए। इलेक्शन कमीशन ने क्या इंश्योर किया है इस बारे में कि किस तरीके से ये इंश्योर होगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कोई गलत इस्तेमाल न कर पाए? इसके लिए किस तरह के सेफगार्ड रखने की बात कही गई है? वीवीपैट के बारे में उन्होंने क्या कहा? देखिए, कई ऑब्जर्वर उन्होंने नियुक्त किए हैं चुनाव को लेकर दीपक जी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसमें चुनाव आयोग ने यह कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त ने, कि 10 लाख पोलिंग स्टेशन होंगे, लेकिन आप 3 चरणों में द्वितीय चरण में कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव हुआ था और बचत फिर तीसरे चरण में हुआ था। तो करीब करीब उसी पैटर्न में चुनाव हो रहा है और हम उसके लिए तैयार हैं और इंतजार था कि चुनाव आयोग तिथि कब घोषित कर रहे हैं और चुनाव घोषित हो गया है, आचार संहिता लग चुका है और हम सब कांग्रेस जन उसके लिए तैयार बैठे हुए हैं, मतदाता भी तैयार बैठे हैं। विधानसभा चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया, एक तरीके से ऐतिहासिक विजय आपके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की हुई थी। अब ये लोकसभा चुनाव है, उसको सेमीफाइनल कहा गया था, इसको फाइनल कहा आप लोगों ने कहा है, क्या स्थिति होने वाली है? सेमीफाइनल में 3/4 बहुमत से जीते थे, अब फाइनल में 100% से जीतेंगे, 11-0 से रिजल्ट आएगा। क्या ऐसे तथ्य है जिसको लेकर के आपको भरोसा है कि 11-0 का रिजल्ट आप ले आएंगे? पहली बात तो ये है कि जितने वादे भारतीय जनता पार्टी ने किया था, केंद्र सरकार ने किया था, वो एक भी पूरा नहीं हुआ। चाहे वो 15 लाख रुपए प्रत्येक खाते में जमा करने की बात है, 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ हर साल रोजगार पैदा करने की बात उन्होंने कही थी। तो ये सारे जो वादे हैं वो तो पूरा हुआ नहीं है। और यहाँ विदेश के धन को देश में लाने की बात हो रही थी। यहाँ देश के उनके उद्योगपति मित्र 1 लाख करोड़ से ऊपर राशि वो विदेश ले गए, भाग गए और भगाने में उनको मदद किया। हिंदुस्तान के खजाने को लुटवाने में लगे रहे ये सरकार। और दूसरी तरफ जब हमको मौका मिला छत्तीसगढ़ में तो हमने किसानों को 25 रुपया समर्थन मूल्य दिया, ऋण माफी किया है, गरीबों को चावल देने का, बिजली बिल आधा करने का, ये सारे निर्णय लिए। आदिवासी की जमीन हमने वापस किया है, फॉरेस्ट राइट एक पट्टा हम लोग दे रहे हैं। तो लगातार जो हमने वादा किया था उसे पूरा किया है और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था उसको एक भी पूरा नहीं किया है। यानी आप जो है करीब 70 दिन की जो आपको सरकार है उसकी उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, दोनों में तुलना होगी कि कांग्रेस की सरकार क्या करती है और भारतीय जनता पार्टी सरकार क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की अभी कोशिश है, अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो जो स्थिति अभी पाकिस्तान के साथ बनी है उसका फायदा कहीं ना कहीं जो लोगों के मनों में भर करके और उसका एक उन्माद पैदा करके उसका फायदा उठाया जाए, आपको क्या लगता है? और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती है कि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो अलग मुद्दे पे होते हैं, विधानसभा का जो रिजल्ट आया था उस आधार पर रिजल्ट नहीं आएंगे। देखिए, एक तो चुनाव के 1-2 साल पहले लोग आपस में चर्चा करते थे कि या तो ये राम मंदिर वाला मामला लाएंगे या सीमा में तनाव पैदा होगा। और लोगों ने जो आपस में जो चर्चा की थी वो अब सही साबित हो रहा है कि इस प्रकार से जो घटनाएं घटी है, क्योंकि सरकार ने 5 साल में कुछ किया नहीं, लोगों को कुछ भला तो किया, न किसानों के लिए किया, न मजदूरों के लिए किया है, न नौजवानों के लिए कुछ किया है। तो इसी प्रकार के मुद्दे में ये लोग जाएंगे, इसके अलावा इसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो अब अध्यक्ष के रूप में टिकट की घोषणा कब तक आप करने वाले हैं? बहुत जल्दी हो जाएगी। अब हमारे तो पीसी की भी बैठक हो गई, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो गई और चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह ने जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता केसी त्यागी से बातचीत की है। आइए वो सुनते हैं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी साहब हैं। त्यागी साहब, जिस तरह से 7 चरण में ऐलान किया गया है, किस तरह से देखें? हम चुनाव की तिथियों की घोषणा करते हैं। हम चुनाव के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारा गठबंधन बिहार में और राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत है और एक बार पुनः हम पुराने नतीजों को दोहराने में कामयाब होंगे।
जो जिस तरह से महागठबंधन आप मानते हैं कि एक चुनौती है आपके? नहीं, महागठबंधन इसलिए चुनौती नहीं है कि 77 की तरह से ना तो कोई जयप्रकाश नारायण जैसा क्रेडिबल लीडर है, न जनता पार्टी जैसी कोई बड़ी पार्टी है, न वीपी सिंह जैसे 89 में थे एक शक्तिशाली और चुनौती नहीं है कि 77 की तरह से ना तो कोई जयप्रकाश नारायण जैसा क्रेडिबल लीडर है, न जनता पार्टी जैसी कोई बड़ी पार्टी है, न वीपी सिंह जैसे 89 में थे एक शक्तिशाली और क्रेडिबल लीडर, ना उस तरह की परिस्थितियां हैं, और ना जनता दल जैसा कोई मजबूत दल है। इसलिए कोई बड़ी चुनौती हमारे सामने, हम ऐसा नहीं मानते। मोदी की मुद्दा क्या होगा? मुद्दा विकास, केवल विकास, सिर्फ विकास। तो ये थे केसी त्यागी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मुद्दा केवल विकास होगा। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो जनता दल यूनाइटेड सिर्फ विकास के मुद्दे की बात कर रही है, लेकिन राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ा मुद्दा होगा। और प्रधानमंत्री ने अब से कुछ सेकंड पहले, 13 सेकंड पहले ट्वीट करके ये साफ कर दिया है कि इस बार का हैशटैग क्या होगा। हैशटैग होगा फिर एक बार मोदी सरकार। निकट, क्या कहेंगे आप इसके बारे में, फिर एक बार मोदी सरकार? देखिए, मैं अपनी बात कुछ लाइनों के माध्यम से आपके सामने रखना चाहूंगी। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना कि बिना मेहनत के मंजिलें नहीं मिलती, तख्त तो ताज नहीं मिलते। ढूंढते तो वो लोग हैं अंधेरों में मंजिलें, जिनको लगता है कि रोशनी के जुगनू सिर्फ वही हैं। एक छोटी सी बात, ये कंपटीशन किसके बीच में है? ये कंपटीशन है डायनेस्टी, जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड, एक देखिए अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी की, सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रधानमंत्री राहुल गांधी वर्सेस मेहनत 18 घंटे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले वो प्रधानमंत्री जी हैं जो 18 घंटे लगातार काम करते हैं, और वो सभी को, अपने सभी नेताओं को, सभी मंत्रियों को यही बोलते हैं कि 100 बाद में लेना, पहले जनता का विकास कर लो। तो विकास तो रहेगा और फिर से मोदी सरकार रहेगी, फिर से मोदी सरकार बनेगी। अतुल सक्सेना जी यहाँ बैठे हैं। अतुल जी, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपने एक महागठबंधन बनाया है उत्तर प्रदेश के अंदर। आपको लगता है कि राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के चलते फिर एक बार मोदी सरकार हैशटैग ट्रेंड होने वाला है इस बार? देखिए दीपक जी, सबसे पहले मैं बधाई देता हूं चैनल के माध्यम से देश की जनता को कि इस दिन का हम लोग इंतजार कर रहे थे। हालांकि ये जो चुनाव आयोग द्वारा ये घोषणा करी गई है, इसको भी मैं कहूंगा कि मोदी सरकार ने पॉलिटिकल टूल की तरीके से यूज किया गया है। पिछली बार देखे 5 मार्च में जो घोषणा हुई थी, मोदी जी के तय कार्यक्रम जब सारे निपट गए, तब आज ये घोषणा करी गई है। पर एनीवे जो घोषणा, तो खुश हो जाइए, इसमें भी आपको दिक्कत नजर आ रही है। सर, ये घोषणा खुश हो जाइए, हो गई। सर, हमने कहा घोषणा नहीं कर पाएंगे। जी, हम ये कह रहे हैं कि आज बहुत बड़ा दिन है, और जो आप कह रहे हैं फिर एक बार मोदी सरकार, मैं इस चैनल के माध्यम से कहूंगा कि अब ये उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 23 मई को नतीजे आपके सामने होंगे। अच्छा। और आप देखिएगा मोदी सरकार कहीं से कहीं तक आने वाली नहीं है। अच्छा। क्योंकि झूठ बोल के 2014 में जो सरकार बन गई, मुझे बताइए देश में कितनी सीटें हैं? अतुल जी बताइए। 543 लोकसभा सीटों का चुनाव होना है। और कितने में समाजवादी पार्टी खेल में है, ये बता दीजिए। समाजवादी पार्टी गठबंधन में, हमारा 80 सीटों पर 80, आप कितनी सीटों पर खेल में? 80 सीटों पर जी। दीपक 80 सीटों पर आप है ना दीपक जी? अतुल जी बताइए, आप 80 सीटों पर खेल में है ना? 80 सीटों पर प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं। दीपक जी मुझे बोलने का आप समय दें। आपकी बात से चोर मसेरे भाई, चोर मौसेरे भाई कहने से काम नहीं चलता। चोरी आपने करी, अमित शाह जी का बेटा जय शाह कितने करोड़ की चोरी करी है। आप लोग इल्जाम लगाते हैं, झूठे इल्जाम लगाते हैं। आप पहले अपने गिरेबान में देखिए, हर चीज का सरकारी मशीनरी को आपने, सरकारी मशीनों को आपने पॉलिटिकल टूल की तरीके यूज किया है। आप देखिए पुलवामा में एयर स्ट्राइक हुई, आज तक आप आंकड़े नहीं दे पाए। आज तक वहाँ बिल्डिंगें, आज तक वहाँ बिल्डिंगें खड़ी हैं, आज तक बिल्डिंगें खड़ी हैं। मैडम आप देखिए झूठे वादे करके आप सत्ता में आने वाले नहीं है। 23 मई को जनता आपको सबक सिखा देगी। 23 मई को जनता आपको सबक सिखा देगी। मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ दीपक जी, 2014 में जितना झूठ बोला था, सारे झूठ की पोल खुल चुकी है। जनता गुमराह नहीं हो रही है। 15 लाख आपने वाले जानने के लिए सीधे जनता के पास चलते हैं। वहाँ हमारी सहयोगी दीप्ति मौजूद है। दीप्ति, क्या कहती है भोपाल की जनता? फिर थोड़ी देर में झगड़ेंगे, हम थोड़ी देर में झगड़ेंगे। अतुल जी थोड़ी देर में झगड़ेंगे। जी दीपक, बिल्कुल चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। जी हम पूछते हैं, हमारे साथ कुछ युवा साथी मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं। जी क्या नाम है आपका? आदर्श।
ये बताइए, चुनाव की तारीखें आ गई है, 29 अप्रैल को मध्य प्रदेश में वोटिंग है। अब की बार कैसी सरकार चाहिए आपको? जी देखिए, पिछले 5 साल में जो हमको एक नया लीडर मिला है, उसने भारत को एक नई दिशा तो दी है। जिस हिसाब से उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे काम किया है, तो हम चाहेंगे कि इस 5 साल में भी हम उनको एक और मौका दें, ताकि ये कहीं पे जो उनके अनएग्जीक्यूटेड प्लान है उसको एक नई दिशा मिले, वहां पे ले जाके वो एक देश को एक नए परचम पे ले जाए। और अगर ये तो फिर देखने वाली बात होती है। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? मध्य प्रदेश में तो आपने निजाम बदला है, देश में क्या चाहते हैं? नहीं, मोदी जी का शासन बड़ा ही सशक्त रहा है और उन्होंने देश को दुनिया के सामने भी बहुत सशक्त प्रस्तुत किया है। मैं पर्सनली लेवल पे ही चाहता हूँ कि मोदी जी दोबारा से पीएम बने। आप बताइए। बस मोदी जी पीएम बने ये तो चाहता हूँ, पर पिछली बार जैसे बहुत सारे काम उन्होंने नहीं किए। रोजगार बोला था पर उतना मिला नहीं, बहुत सारी कमियां रह गई हैं। हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति को आगे ना बढ़ाएं, कुछ सही में करें। हर बार जब भी एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो आरक्षण ले आते हैं, आरक्षण बढ़ा देते हैं, कभी कम कर देते हैं। ओबीसी ये सब जनरल करके रियल एम्प्लॉयमेंट कुछ आता नहीं है इस बार। तो ये अगली बार जो 5 साल का मौका देना चाह रहे हैं, ये सब खत्म करने के लिए देना चाह रहे हैं? हाँ, ये सब खत्म भी हो, और उन्होंने जो भी बोला था कि 10 साल लगेंगे तो 10 साल ले लें और अपना काम करें, जो बोला है उन्होंने अभी तक। जी आप बताइए। वास्तव में मोदी जी ने का विदेश नीति काफी अच्छा है, लेकिन उन्होंने मतलब एम्प्लॉयमेंट पे कुछ ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया कि मतलब लोगों को अच्छे से मतलब काम मिल पाए, जिनके कारण लोग मतलब गुस्सा है। लेकिन हम मोदी जी पे भरोसा करते हैं, अगले बार भी वही आए। गुस्सा है, लेकिन इतना भरोसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनकी मतलब जैसी विदेश नीति रही है और मतलब जिस हिसाब से उन्होंने विकास किया है, तो वो काम अच्छा है। लेकिन उनको थोड़ा रोजगार ये सब पे भी ध्यान देना चाहिए। और आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार आनी चाहिए। जिस तरह से अभी स्ट्राइक्स हुए, कांग्रेस को हमने 70 साल दे चुके हैं, बट हम चाहते हैं कि अब हम एक नई सरकार जो बीजेपी 5 साल की, बट इसको हम और टाइम दें, ताकि ये और जितने भी चीज किए और उसको और आगे बढ़ा पाए। थोड़ी सी मेरे मतलब मोदी जी से एक गुजारिश है कि और अनएम्प्लॉयमेंट जो ज्यादा हो रही है उस पर थोड़ा नजर करे। अतुल जी, 6 लोगों से बात हुई है, 6 के 6 बोल रहे हैं भले से उनको किसी चीज पर शिकायत है और रोजगार पर शिकायत कर रहे हैं, जिस पर हम निकट से जवाब लेंगे, लेकिन 6 के 6 लोग बोल रहे हैं कि मोदी की सरकार वापस आए। यानी आपका जो गठबंधन है, आपने जो गठबंधन बनाया है, वो वापस पैक होने के लिए रखा हुआ है उत्तर प्रदेश में। दीपक जी नहीं, देखिए आपने कहा कि 6 के 6 लोग बोल रहे हैं। यदि आप उनका स्टेटमेंट आप अपनी फिर से क्लिपिंग लगा करके सुन लें तो ये कह रहे हैं को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। सर, जो चीज आप सुन रहे हैं दीपक जी, वही चीज मैं सुन रहा हूं। आपके पास 38 में से भी 3 कम हो गई। आरएलडी को सीटें देनी है आपको, 35 सीटों पर आप लड़ रहे हैं और सपने देख रहे हैं कि आप नया प्रधानमंत्री बनवाएंगे। आरएलडी भी गठबंधन का हिस्सा है दीपक जी। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। सबसे बड़ा राज्य होने के कारण उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका होती है देश का प्रधानमंत्री तय करने में। और गठबंधन की सरकार में आप देखिएगा, मोदी जी कहीं से कहीं तक विकास की जो बात करते हैं, विकास कुछ हुआ नहीं है। जो जनता के सामने है, अभी चैनल के सामने जो आपने क्लिपिंग मुझे दिखाई है, उसमें भी हर व्यक्ति ने यही कहा कि रोजगार देने का वादा किया, रोजगार दिया नहीं, विकास का वादा किया, विकास हुआ नहीं। आपके ही एंकर ने जब पूछा है कि क्या मोदी सरकार आनी चाहिए, तो बड़े मायूसी से उदासीन चेहरे को सामने रखते हुए और कहीं हट ना हो जाए, इसलिए उसने कहा एक बार मौका और देके देख लिया जाए, पर काम तो करें। अब भी उसने कहा काम तो करें, पर ये जो क्लिपिंग है ये साफ दिखा रही है कि लोगों में कितनी उदासीनता है। लोग मायूस हो चुके हैं सरकार से, जो सोच के लाए थे कि मोदी जी आ रहे हैं। अच्छा, आप विकल्प है क्या, ये बताइए, आप विकल्प है क्या? बिल्कुल विकल्प क्यों नहीं है। 35 सीटों के साथ 543 में विकल्प। अरे दीपक जी, 35 सीटों की बात नहीं है, महागठबंधन का स्वरूप है। और आप देखिएगा 23 मई को जब रिजल्ट आएगा। मुंगेरी लाल का नाम सुना है? सर देखिए, हम मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखते हैं। हमारी पार्टी जो है काम करती है, धरातल पे काम करती है। सपने देखने की बात आप नहीं करते जी। आप जिनमें सपने देख रहे हैं, मुंगेरी लाल का आपको कितना बड़ा नुकसान हुआ है। पंखुड़ी पाठक जी मेरे साथ बैठी हुई है, नाम सुनने की पंखुड़ी पाठक जी मेरे साथ धरातल पे कार्य करते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुन लीजिए, अखिलेश यादव जी के कार्य को जनता आज भी याद कर रही है और सबके सामने करे हुए हैं। पंखुड़ी पाठक जी आपकी समाजवादी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गई है और कांग्रेस की प्रवक्ता बन गई है। पंखुड़ी, ये दिल में परिवर्तन कैसे आया? पार्टी में जाता है, कोई किसी पार्टी में जाता है, इसमें कोई नया नहीं हो रहा। बीजेपी के लोग भी बहुत से समाजवादी पार्टी में आए हैं
और बहुत से लोग बसपा में गए हैं पिछले एक नाम बता दीजिए, आप एक नाम बता दीजिए। बीजेपी से कौन, समाजवादी पार्टी में क्या, एक नाम बता दीजिए। बीजेपी में क्या हो रहा है, एक नाम क्या हो रहा है, अतुल जी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। कबीर नगर देखिए क्या सीखों वाली पार्टी का एयर टाइम हो गया पूरा, गए दूरदर्शन पे जैसे करते ना, जिसकी कितनी सीटें ऐसे जीतम पेजर होगा, ऐसे चेहरा नहीं देखा ना तो इनका देख लीजिए। पंखुड़ी आपने जवाब नहीं दिया, ये समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में एंट्री आपकी कैसे हो गई? दीपक जी, इतना शोर शराबा चल रहा था कि आपका सवाल मुझे सही से सुनाई नहीं दिया, लेकिन यहाँ सवाल मेरा नहीं है, सवाल यहाँ पर ये है कि आज बहुत हम लोगों के इंतजार के बाद अच्छा नहीं, मुझे किसी की आवाज कुछ सुनाई नहीं दे रही थी इतने शोर शराबे में कि कौन क्या कह रहा है, तो मैं सुन नहीं सकी। लेकिन सभी वोटरों को हम बधाई देना चाहेंगे कि आज बहुत इंतजार के बाद चुनाव के रिजल्ट, चुनाव की जो घोषणा है चुनाव की, वो हो चुकी है। और हम लोग पूरी तरह से, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह सकती हूँ कि हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं चुनाव के लिए, और जितने भी हम लोगों के तैयार है, राहुल गांधी तैयार है क्या? जो विफलताएं हैं सरकार की, आप तो तैयार है, पर राहुल गांधी तैयार है क्या? नहीं, क्यों नहीं है, सभी दल तैयार है। राहुल गांधी जी हर दिन लगातार कांग्रेस पार्टी का प्रचार अलग अलग प्रदेशों में कर रहे हैं, और अभी हम तीन विधानसभा के चुनाव उनके नेतृत्व में जीते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी शक उनकी तैयारी पर आपको होना चाहिए। लगातार प्रचार चल रहा है, और राफेल के मुद्दे को लेकर जिस तरह से सरकार को हम लोगों ने घेरा हुआ है, सरकार के पास आज जवाब नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं दे पा रहे, जनता की अदालत में जवाब नहीं दे पा रहे, तो ये सब राहुल जी के नेतृत्व में हो रहा है। और 3 चुनाव अभी हम लोगों ने जीते हैं। लोगों का, जनता का सेंटिमेंट हम समझते हैं, जनता इस समय बदलाव चाहती है। अच्छा, और वही ये तो बताया नहीं, अभी ये बताया नहीं, मुख्य सवाल का जवाब नहीं दिया। इसमें भाजपा लगातार सीटें हारी है। पंखुड़ी, आपने मुख्य सवाल का जवाब नहीं दिया। आपका ये समाजवादी पार्टी से कांग्रेस तक का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? दीपक जी, जिस समय मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ी थी तो उसके कारण मैंने बताए थे सभी को, सभी चैनल्स को। लेकिन इस समय अगर कांग्रेस को ज्वाइन करने की आप बात कहें तो वो मेरी खुद की निजी विचारधारा है, जो कांग्रेस का जो आइडिया है, जो सबको साथ लेकर चलने का आइडिया है, देश को एक प्रोग्रेसिव लीडरशिप देने का आइडिया है, उसमें मैं पूरी तरह से विश्वास रखती हूं। और क्योंकि हम लोग देश तोड़ने में नहीं, देश जोड़ने में विश्वास रखते हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को मैंने चुना, और मैं बहुत खुश हूं अपने इस चुनाव से। और वही जो हमारा एक कांग्रेस का आइडिया है, पूरे देश को साथ ले जाने का, एक होप देने का देश को, उसको हम लेकर जाएंगे। क्योंकि 5 साल मोदी सरकार को पहले राहुल गांधी पार्टी को हिसाब कर ले, बेहतर होगा। बहुत उम्मीदों के साथ बहुमत दी थी, पहले राहुल गांधी पार्टी को हिसाब कर ले, बेहतर होगा। भाजपा बिल्कुल खरी नहीं उतर पाई। डॉक्टर, मेरे साथ सतीश कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं। सतीश कुमार सिंह जी, आपको लगता है पंखुड़ी जो कह रही हैं, बड़े आइडियलिस्टिक हिसाब से कह रही हैं, नई पार्टी में आई हैं, तो उनका उत्साह बना हुआ है? बिल्कुल, जैसा कि पंखुड़ी जी बता रही थी कि कांग्रेस पार्टी मैं इसलिए ज्वाइन, क्योंकि आइडिया ऑफ जो भारत है, आइडिया ऑफ इंडिया, वो कांग्रेस की है, और उसे जोड़कर चलने के बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट का तोड़ने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। आज अगर सिटीजनशिप बिल की बातचीत चल रही है, उसके पीछे, उस उपद्रव के पीछे, उस कूड़े के पीछे किसका योगदान है? कांग्रेस का योगदान है। वोट बैंक की राजनीति की अगर हम बात करें तो उसमें किसका योगदान है? पंडित वोट बैंक, दलित वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक किसने निर्माण किया? कांग्रेस ने किया। तो इन सारे तमाम चीजों को, देश को अलग अलग खंडों में विखंडित करने का काम कांग्रेस ने किया है। अगर यही आइडिया ऑफ भारत है, कांग्रेस की नीति है, और उसके आधार पर पूरी राजनीति आप लोग करते हैं, तो बहुत अच्छी ईद और दिवाली की राजनीति आप करते हैं, शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति आप करते हैं, जिसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में अगर इंडिया के रिसोर्सेज पर सबसे पहला हक है तो वो माइनॉरिटीज का है, प्रथम अधिकार माइनॉरिटीज का है। और आप कह रही हैं यहाँ बैठकर कि कांग्रेस सरकार हिंदुस्तान को जोड़ने का काम करती है। कांग्रेस सरकार ने शुरू से लेके आज तक, जवाहरलाल नेहरू के समय से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को तोड़ने का काम किया है। अगर कश्मीर की दिक्कत देखें, हिंदुस्तान में कश्मीर की दिक्कत देने वाला कांग्रेस सरकार है। जवाहरलाल नेहरू के तहत हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, वो तो
सबसे बड़ा प्राइम एग्जाम्पल है। मैं मानती हूँ आपकी मजबूरी है कांग्रेस को सपोर्ट करना, पर कुछ तथ्यों को आप मना नहीं कर सकती। ये बात जाहिर है कि जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस सरकार हिंदुस्तान की जनता को जो तोड़ती आई है। पाकिस्तान हिंदुस्तान बना क्यों? पाकिस्तान हिंदुस्तान बना क्यों? हिंदुस्तान एक तरह का बंटवारा हुआ आपके चक्कर में। जवाहरलाल का भी कितना डर आपके में है उस भारत का जो इतने साल कांग्रेस पार्टी ने बनाए रखा। अच्छा, मैं आपको आपको इतना सता रहा है कि आप इतने सालों बाद भी इतने डर आपके में है उस भारत का जो इतने साल कांग्रेस पार्टी ने बनाए रखा। अच्छा, मैं आपको आपको इतना सता रहा है कि आप इतने सालों बाद भी इतने सालों बाद मैं आप दोनों को रोकूंगा क्योंकि मेरे पास कुछ अहम जानकारी आई है जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जिन राज्यों में एक ही फेज में चुनाव होने हैं, जहां पर एक ही दिन वोटिंग होगी, वो है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तराखंड, अंडमान एवं निकोबार, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़। ये केंद्र शासित प्रदेश और राज्य वो हैं जहां पर सिर्फ एक दिन मतदान होना है। जिन राज्यों में 2 फेज में चुनाव होंगे वो है कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और त्रिपुरा। जिन राज्यों में 3 फेज में चुनाव होने हैं वो है असम और छत्तीसगढ़, सिर्फ 2 राज्य हैं। जिन राज्यों में 4 फेज में चुनाव होने हैं वो है झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा। जिन राज्यों में 5 फेज में चुनाव होंगे वो है जम्मू कश्मीर। जिन राज्यों में 7 फेज में चुनाव होंगे उसमें सिर्फ 3 राज्य हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, जहां की सीटें काफी ज्यादा हैं, बड़े राज्य हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। रवि प्रसाद जी हमारे साथ हैं। रवि, माफ कीजिएगा आपका नाम मुझे गलत मिला। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं, मुझे ये बताइए कि इस मुकाबले को आप द्विकोणी देख रहे हैं, त्रिकोणी देख रहे हैं, चतुष्कोणी देख रहे हैं, और अगर इतने कोण का मुकाबला हुआ तो एडवांटेज आप किसको देंगे? दीपक जी, मैं शुरुआत इस बात से करना चाह रहा हूं कि आज जो महत्वपूर्ण जो घोषणा हुई है, जो मतलब आज शुरुआत है डांस, इसको कहते हैं हम लोग डांस ऑफ डेमोक्रेसी, आज से शुरू हो गया। मतलब डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है आज से शुरू हो गया और 2.5 महीने तक हम लोगों को देखने को मिलेगा। और आपने उसका नजारा भी अभी दिखा भी रहे थे कि किस तरह से आपस में पॉलिटिकल पार्टीज स्कोर कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर। लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण चीजें जो इम्पोर्टेंट हैं वो ये है कि जब हम ये बात करते हैं कि ये चुनाव कितने कोणीय होना है, कि किस तरह से होना है और क्या हाउ दिस इलेक्शन विल अनफोल्ड इटसेल्फ, उससे पहले हम चलते हैं कि वही 90 करोड़ लोग जहां इलेक्शन और अपना वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, जहां 1.5 करोड़ 18 से 19 साल के युवा वोट करने वाले हैं, और इन लोगों की जो अपनी एस्पिरेशंस हैं या वो किस तरह इस डेमोक्रेसी को देखते हैं, ये अपने आप में इतना अनूठा और इतना जबरदस्त होने वाला। आप इतने सालों से इलेक्शंस कवर करते आ रहे हैं, हम लोग करते आ रहे हैं, देखें और किस तरह से ये चुनाव किस तरह से अनफोल्ड होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब हम आपके सवाल पे आते हैं यहाँ कि देखिए ये जो चुनाव है, ये नैरेटिव्स जो चल रहा है कि बीजेपी इज विनिंग ऑन द वे, वो तो है ही, बिल्कुल सब लोग को लगता है कि एक मजबूत लीडरशिप आया है, पहली बार देखने को मिल रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर घुस के एयर स्ट्राइक करती है। कभी हुआ था क्या 50 साल पहले, 49 ईयर्स पहले, 79 में 71 में जब वॉर हुआ उसके बाद तो कभी हम लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं था। तो ये लोगों को, खासकर युवाओं में इन चीजों का बहुत प्रभाव पड़ता है कि किस तरह से टैकल करना है। तो सामने अपोनेंट कौन है इसको देखना है, उनकी पॉलिटिकल थॉट्स को देखना है। ठीक है, लोग मेरे साथ कई सारे मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। एहतियाब इंदौर से जुड़े हैं, उर्वशी मेरे साथ मुंबई से जुड़ी हैं और राकेश कुमार सिंह दिल्ली से जुड़े हैं। सबसे पहले उर्वशी में आपके पास आना चाहूंगा। महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव होने हैं वो चुनाव 4 फेज में होने हैं। मैं महाराष्ट्र के दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि यहां पर 4 फेज में चुनाव होने हैं महाराष्ट्र के अंदर, और एहतियाब जहां से है मध्य प्रदेश, वहां से भी 4 फेज में चुनाव होने हैं। किस तरह के राजनीतिक समीकरण आप महाराष्ट्र में उर्वशी देख रही हैं?
जी, हम देखेंगे इस बार किस तरह से 4 फेज में चुनावों की घोषणा की गई है। पिछली बार जो है 3 फेज में हुए थे और इस बार अगर हम महाराष्ट्र के पार्टीज की बात करें, इन पूरे पार्टीज में जिस तरह से बीजेपी और शिवसेना जो एक बहुत ही बिकरिंग अलाइज रही है, हमेशा एक दूसरे के ऊपर उन्होंने निशाना छेड़ा है, पर फिलहाल ही कुछ ही दिनों पहले उन्होंने अनाउंस किया कि कैसे एक पोल अलायंस जो है अलायंस के साथ पोल में आना चाहते हैं और उन्होंने अपने सीट्स का बंटवारा भी अनाउंस कर दिया है, वो है 25 और 23। महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो 48 एमपीज महाराष्ट्र से आता है, जो कि दूसरा बड़ा नंबर है उत्तर प्रदेश के बाद। और अगर हम शिवसेना और बीजेपी की हमने जिस तरह से बात की, वहीं कांग्रेस और एनसीपी जिन्होंने अब तक सीट शेयरिंग के ऊपर आंकड़े जो है अब तक बाहर नहीं निकाले, पर हाँ उन्होंने ये अनाउंस किया है कि किस तरह से जगह जगह पे वो अलायंस के तौर पे आगे निकलेंगे। और इसमें अगर हम देखें तो इकट्ठे मिलकर वो सिर्फ ना कि कांग्रेस और एनसीपी, बट उन्होंने बरिप जो है प्रकाश अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के जो ग्रैंडसन है, उन्हें भी वो लेना चाहते हैं और इस तरह से दलित और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर वो जीतने की इच्छा रखते हैं और वो कहीं ना कहीं जो है अच्छा भी साबित हो सकता है अगर ये आगे अलायंस तय करे। फिलहाल कांग्रेस और एनसीपी के जो सीनियर लीडर्स हैं, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान है, अशोक चौहान है, और एनसीपी से शरद पवार जो किंग मेकर कहलाए जाते हैं, महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत के पॉलिटिक्स में वो एक रोल प्ले करेंगे। सारे सीट्स के बंटवारों को देखकर हमने रिसेंटली देखा था कि किस तरह से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र में एक साथ हो सकते हैं, ऐसी एक कॉल लिया गया था, बट हालांकि वो जो है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और 4 फेज में महाराष्ट्र की जनता जो है वोट करेगी। चलिए अरुचि, आपने बताया महाराष्ट्र के बारे में, सीधे चलते हैं एहतियाब के पास। एहतियाब, तारीख आ गई है, मध्य प्रदेश के अंदर भी 4 फेज के अंदर चुनाव होंगे। हालांकि विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में एक ही फेज में हुआ था। मध्य प्रदेश के अभी के राजनीतिक मौसम को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या मोदी की वेव मध्य प्रदेश में उसी तरह से बरकरार है जिस तरह से 2014 में थी, या कमलनाथ की सरकार आने के बाद यहां पर फर्क पड़ा है? दीपक, अगर मध्य प्रदेश के चुनावी नब्ज जाननी है तो हम सीधे तौर के ऊपर मध्य प्रदेश के वोटर से ही बात करेंगे, लेकिन आपके सवाल का ये जवाब जरूर देना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के जो चुनाव थे वो कहीं ना कहीं वो 4 मेजर बिंदु थे, वो 4 मेजर मुद्दे थे। किसानों का मुद्दा था, उससे बड़ा मुद्दा था रोजगार का मुद्दा था, उसके अलावा आदिवासियों अंचल का जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं हावी पड़ रहा था। कांग्रेस ने कोई भी जमीन जरूर प्राप्त करी थी, लेकिन लोकसभा का चुनाव, जैसा पहले भी दीपक हम बात कर रहे थे, तो लोगों का अभी फिलहाल जो कहा जाए कि ड्रिफ्ट है, वो ड्रिफ्ट कहीं ना कहीं एक सशक्त और परफेक्ट गवर्नेंस की बात करते हैं। इंदौर की जनता ही मेरे साथ है, मैं सीधे आपसी उनसे ही बात करा देता हूं। सर, इस चुनाव में क्या समीकरण रहेंगे? आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार होगी? मोदी जी की सरकार होना जरूरी है। सर, कोई खास मुद्दे देख रहे? खास मुद्दे ही जो उन्होंने काम किए किसी ने किए नहीं होंगे। जिस तरीके से उन्होंने रोजगार लाया, मतलब जो भी बेरोजगारों को रोजगार दिया, गरीबों पर ध्यान दिया, जो किसी सरकार ने नहीं दिया होगा। सर, दीपक मेरे साथ युवा साथी भी। सर, आप बताइए कि इस बार जब वोट करने जाएंगे, इस बार आपके दिमाग में क्या मुद्दा है और समीकरण मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा में कहां बदले थे? सर, मुद्दा मेन ये है कि मोदी जी जो कर रहे हैं, जो आज तक किया है, बहुत अच्छा किया है। अभी जो हमारे साथी जवान अभी शहीद हुए थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया, सटीक जवाब दिया, जिसमें हमारे देश का शेर वापस आया, इसमें हमें बहुत खुशी हुई, हमारे देश का गौरव बढ़ाया। आगे भी ऐसी न्यू इंडिया का जो सपना साकार करना जा रहे हैं मोदी जी, उसके लिए मैं बिल्कुल पूर्ण बहुमत देने के लिए मोदी जी का हूँ। सर, आप बताइए कि इस बार के चुनावी समीकरण मध्य प्रदेश के कैसे देख रहे हो? विधानसभा चुनाव में कहां बदलाव हुआ? देखिए, आना तो मोदी को चाहिए, बीजेपी को, बाकी तो सब ऐसे ही है। सर, ऐसे ही से कुछ समझाएंगे आप? मतलब काम करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ खाने वाले हैं।
काम करने वाला कोई नहीं है। सर आप कहना चाहेंगे? दीपक, आपने सुना कि अगर इंदौर की जनता की मैं बात करता हूं तो जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि बात अगर मोदी फैक्टर की जाए तो 2014 में हमने मोदी फैक्टर देखा था। 2019 का चुनाव अब आ चुका है। 2019 के चुनाव में ये जरूर है कि विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस ने बढ़त ली, अपनी सरकार बनाई, लेकिन कहीं ना कहीं मैं पोस्ट एयर स्ट्राइक की बात करता हूं तो निश्चित रूप से ये देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की धरती के ऊपर कहीं ना कहीं मोदी लहर दिखाई देने लगी है। ठीक है राकेश, कोई नई जानकारी इलेक्शन कमीशन से? दीपक जी, जैसा कि आप जानते हैं कि जो दल एजेंडा तय कर देता है वो कहीं न कहीं दूसरे दलों पर, अपने विपक्षी दलों पर बढ़त बना लेती है। जिस तरह से आपने देखा कि हवाई हमले के बाद एक तरह से जो मुद्दा था, चाहे राफेल का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, वो गौन हो गया है। विपक्ष जो है उस मुद्दे को फिर से लाना चाहता है, लेकिन जिस तरह से देश में माहौल है कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में क्या इसी तरह से बीजेपी जो है इस मुद्दे को आगे बढ़ाती है, ये महत्वपूर्ण बात होगी। दीपक जी चलिए राकेश, मैं वापस आता हूं और निखत और पंखुड़ी को मैं फ्रेम में काटना चाहता हूं। निखत है हमारे साथ, पंखुड़ी भी हमारे साथ है, दोनों को फ्रेम में काटिए। मैं दोनों को 2-2 मिनट देता हूं और दोनों मेरे माध्यम से वोटर को, देश की जनता को ये बताने की कोशिश करें कि आखिर कांग्रेस को या कांग्रेस के सहयोगियों को, और निखत बताएंगी बीजेपी और एनडीए को जनता क्यों वोट दे। 2-2 मिनट का वक्त है, ये टाइम जो काउंट करेगा वो मेरा पीसीआर करेगा। निखत को एक फ्रेम में रखिए, पंखुड़ी को एक फ्रेम में रखिए और हम शुरुआत करते हैं। पंखुड़ी, सबसे पहले आपसे, क्योंकि अपोजिशन का पहला हक होता है अपनी बात रखने का। पंखुड़ी। देखिए दीपक जी, बहुत ही उम्मीदों के साथ 2014 में एक पूर्ण बहुमत की सरकार इस देश के युवाओं ने जो चुन के दी थी, वो सोचा था कि शायद यूपीए की जो 2 बार की सरकार रही है उससे कुछ बेहतर ये काम सरकार करके दिखाएगी, और मोदी जी पे आंख बंद करके इस देश के लोगों ने उस समय भरोसा किया था। लेकिन आज जब 5 साल हो गए हैं तो जितने भी चुनावी वादे किए थे, चाहे वो काले धन का वादा किया था, लोगों को 15 लाख रुपए लाने का वादा किया था, आज हम देख रहे हैं कि काले धन के नाम पे नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या विदेशों में घूम रहे हैं मजे से, उनकी वीडियोस हमें मिलती हैं और कोई काला धन नहीं आया, देश का धन बाहर चला गया। उसी तरह रोजगार में जो 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इतना बेरोजगारी इस देश में कभी नहीं हुई जितनी इस समय है। बेरोजगारी के कारण हमारे जो युवा हैं वो लगातार वो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, हताश हैं। किसानों की आत्महत्या जिस तरह से बढ़ी है, आए दिन हम देखते हैं किसानों को आंदोलन करना पड़ता है, किसान लाठियां खाते हैं, नंगे पांव सड़कों पे चल के दिल्ली आते हैं, बॉम्बे जाते हैं। तो बहुत इस तरह का एक जो रूरल डिस्ट्रेस है, जो कृषि क्षेत्र में जो नाकामी इस सरकार की रही है, उससे किसान आज बिल्कुल मरने की हालत में है। और यही सब कारण है जिनकी वजह से जो पिछले विधानसभा के चुनाव हुए उसमें बड़ी हार भाजपा को देखनी पड़ी। और यही जो मुद्दे हैं, यही सब जो चुनावी वादे हैं जिसको लेकर भाजपा असफल हुई है, उन्हीं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और भ्रष्टाचार का तो जो मामला है ही, चाहे वो राज्यों के स्तर पे हो, चाहे वो राफेल के स्तर पे हो, जो भी भ्रष्टाचार के मामले हैं उनको भी लेकर जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो आज समस्या इस देश के सामने है वो बेरोजगारी की समस्या है। वो अर्थव्यवस्था जिस तरह से बिगड़ी है, जिस तरह से जॉब मार्केट खत्म हुआ है, जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग खत्म हुई है, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जो कि लोगों को बहुत ज्यादा सताते हैं, परेशान करते हैं, उनकी दिनचर्या से जुड़े हुए हैं। तो यही सब मुद्दे हैं जो हम लोगों को उनके सामने ले जाना चाहते हैं। और जो उन्नति यूपीए 1, यूपीए 2 में इस देश ने देखी, जो इकोनॉमिक ग्रोथ देखी, जो 2 मिनट आपके पूरे हो चुके हैं, 2 मिनट पूरे हो चुके हैं। निखत आपके पास होगा, निखत सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। देखिए, मैं इसमें दोनों चीजें बताऊंगी कि क्यों एनडीए को वोट दिया जाए और यूपीए को क्यों ना दिया जाए। सबसे पहली बात, अगर आपको याद हो, अगर इन्होंने बोला कि आज बढ़ोतरी नहीं हो रही है जॉब्स में, आपको पता है सिक्किम में पैक्योंग एयरपोर्ट बनाया गया, चिपी एयरपोर्ट बनाया गया महाराष्ट्र में, जिसके तहत छोटे छोटे बिजनेस, छोटे टाउन्स में 2500 रुपए, सिर्फ 2500 रुपए का 1 घंटे की फ्लाइट का प्राइस फिक्स कर दिया गया, जिसके माध्यम से बिजनेस बढ़ रहा है। छोटे टाउन्स में रिसोर्सेज और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं। मुद्रा योजना के तहत इतने लोगों को लोन दिया गया है, 15 करोड़ लोगों को लोन दिया जा चुका है, जिससे वो अपने बिजनेस शुरू कर रहे हैं। 10% आरक्षण पहले ही मैं बता चुकी हूं कि हम लोगों ने दिया है, जिससे, और ओबीसी और एससी एसटी कोटा की अलग है ये, जो 10% आरक्षण लोगों को, इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को दिया गया है। अब आप बात
बात कर रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपको पता है यूपी की सरकार में क्या रैंक थी? 134, आज क्या है? 77, आपसे कहीं कम। तो यहां पे आपको जवाब मिल जाता है। एक छोटी सी बात आपने कही कि काला धन क्रांतिकारी डिसीजन था डीमोनेटाइजेशन का, जिसकी आप कड़ी निंदा करते रहते हैं। आप कहते हैं लोग भाग गए, उन्हें लोन किसने दिया था? आप भूल गए पीएनबी का वो घोटाला, वो आप ही की सरकार में हुआ था। दो चीजें मैं बोलना चाहूंगी यूपी की सरकार में, जो मेरी बहन शायद जानती नहीं होंगी क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है। 12 जून 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया था। वर्डिक्ट में साफ तौर पे बोला गया था कि इंदिरा गांधी ने घोटाला किया है इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने चोरी करी है इलेक्शन के वोट्स में। उन्हें आपको शायद ही आपको पता ना हो कि अगले 6 साल तक के लिए उन्हें बैन कर दिया गया था, फिर भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बात नहीं मानी और वो पार्लियामेंट जाती रही। उसको पछाड़ने के लिए, अपनी पोजीशन होल्ड करने के लिए, पता है उन्होंने क्या करा? उन्होंने उसी वजह से उन्होंने इमरजेंसी लागू करी थी, जिसकी वजह से 2 लाख लोगों को, मासूम लोगों के आपकी सरकार ने जेल में डाल दिया गया था। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको याद हो कि जब इंदिरा गांधी जी जेल में थी तो प्लेन हाईजैक हुआ था, जैसे आतंकवादी लोग प्लेन हाईजैक करते हैं ना अपने दोस्त टेररिस्ट को छुड़ाने के लिए, ऐसे आप। दूसरी बात, अगर आपको याद हो कि जब इंदिरा गांधी जी जेल में थी तो प्लेन हाईजैक हुआ था, जैसे आतंकवादी लोग प्लेन हाईजैक करते हैं ना अपने दोस्त टेररिस्ट को छुड़ाने के लिए, ऐसे आप ही के लीडर ने, कांग्रेस के लीडर ने इंदिरा गांधी को छुड़ाने के लिए, बस एक सेकंड, बस ये बोल लूं उसके बाद आपका सारा वक्त, उन्होंने छुड़ाने के लिए, इंदिरा गांधी को रिलीव करने के लिए जेल से उन्होंने प्लेन हाईजैक किया, और उसी लीडर को जिन्होंने प्लेन हाईजैक किया था यूपी में विधानसभा की सीट दी गई और आप ही की सरकार में उन्हें विधायक बनाया गया। आप कहते हैं कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आप जनता को लूटते आए हैं, आप तो आतंकवादियों से भी गए गुजरे हैं। चलिए, दोनों ने अपनी अपनी बात रखी, फैसला आपका है, फैसला जनता का है, मैं इसके बीच में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन टिप्पणी जरूर लेने की कोशिश करूंगा सतीश जी से और मेरे सहयोगी रवि भाई यहां पर बैठे हुए हैं, दोनों से कि दोनों में से किसके आर्गुमेंट उनको ज्यादा सशक्त लगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद हुड्डा जी का भी स्टेटमेंट आपको दिखाएंगे, उन्होंने चुनाव की घोषणा पर क्या कहा है, लेकिन ब्रेक के बाद।